So, guys, welcome to lecture number 3 for our intermediate microeconomics 1 course. First of all, uh, there was one doubt regarding numeraire price. What is the meaning of numeraire price? So, let me just clarify that first. So, Ananya, we said numeraire का मतलब क्या होता है कि a situation under which what we do is कि हम किसी भी एक प्रोडक्ट या कोई भी वी आर यूजुअली रेफरिंग टू टू गुड्स. सो एक ऐसी सिचुएशन जहां पे हम किसी एक गुड के प्राइस को यूनिटी मान लेते हैं. तो मान लो मेरा सेकंड गुड जो है उसको मैंने न्यूमरेयर गुड के तरीके से ट्रीटमेंट देना शुरू कर दिया. सो व्हाट वुड दैट मीन? दैट वुड मीन कि आज से मैंने बोल दिया कि अब हर प्राइस जो भी मेरी इकोनॉमी में मुझे दिखेगा वो P2 के टर्म्स में होगा और मेरी इनकम भी P2 के टर्म्स में होगी. So now everything will be in terms of P2. So let's say, so there was one example that we gave. So let's say P2 is pen. So everything will be in terms of pens. So अगर मान लो पेन का प्राइस है 10 and the other product that you have is notebook and notebook actually costs 20 rupees. But now we will start quoting it like that the price is 2 pence. The price of pen is 1, the price of notebooks is 2 pen, and your income will also be quoted in terms of pence. So when you consider any good as a numeraire good, what happens is all the other goods in the economy will unke prices you will start quoting in terms of the price of the numeraire good, and your income will also be quoted in that term. तो उसको हम लोग बोलते हैं न्यूमरेयर प्राइसिंग. Okay. ठीक है, दैट्स ऑल. Okay, so guys, there are few terminologies that we have to understand today. So let me just list down the terminologies. So today we will be trying to understand few terminologies. And based on whatever terminology I'm going to explain to you, we are going to draw a few budget lines. Okay, all right. So the first thing that we have in place is tax. And the second thing that we have in place is subsidy. Do you guys understand what is tax and what is subsidy? Basic मतलब तो सबको पता होगा, Yes, ma'am. right? Yes. So tax is when the government is charging us something. Subsidy is when government is giving us something. Now it can be in multiple formats. Okay. अब हो सकता है कि गवर्नमेंट कैन मैंडेट कि मुझे इस क्लास में जितने भी बच्चे हैं फ्रॉम ऑल द पीपल हु आर अटेंडिंग दिस क्लास आई वांट 100 rupees फ्रॉम ईच वन ऑफ देम. So did they base that decision on how much each of us is scoring, how much each of us is earning? Did they make that decision based on that? No, ma'am. नो, उन्होंने एक ब्लैंकेट स्टेटमेंट दी कि सबसे 100 रुपए कलेक्ट कर लो, कलेक्ट 100 rupees फ्रॉम एवरीबडी. सो व्हेन यू गिव अ फिक्स्ड अमाउंट दैट इज सपोज टू बी कलेक्टेड, तो उस चीज को क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड लंप सम amount. Lump sum money ki something which is not associated with your income, something which is not associated with any other criteria. So that is called a lump sum tax. And so the first possibility could be a lump sum tax. So lump sum tax का क्या मतलब होगा? Suppose a tax of rupees 100 and it is not dependent on your income or any other thing. सिमिलर वे में लमसम सब्सिडी का क्या मतलब होगा? मान लो सरकार ने बस एक अनाउंसमेंट कर दी कि हाँ हम सबको 500 रुपए देंगे. सो व्हाट डज दैट मीन? डिड दे डिसाइड कि हु इज मोर पुअर या मे बी हु इज इन मोर नीड उनको हम दें? नहीं. दे जस्ट गिव अ ब्लैंकेट स्टेटमेंट कि वी विल जस्ट गिव दैट मच अमाउंट ऑफ मनी टू एवरीवन. सो दैट विल बी कॉल्ड लमसम सब्सिडी. ओके.
Yeah, so Prachi, we were just discussing different terminologies, and we will try to make budget lines based on that. So I was just telling you what is the meaning of lump sum tax and lump sum subsidy. So a tax which is, not based on any criteria, not based on any income. It is just something that is a blanket statement which is told कि हाँ इतने पैसे या तो आपसे collect करने हैं, that will be a tax. इतने पैसे देने हैं, that will be a subsidy. Are we all clear with this concept, lump sum tax and lump sum subsidy? So, मैम yeah, बोलो. मैम डज इट मीन कि अगर कोई बहुत अमीर इंसान है और बहुत ही गरीब है तो दोनों से सेम अमाउंट का टैक्स ही लेंगे बोलिए? हाँ, तो मुझे फर्क ही नहीं पड़ता कि आप अमीर हो या गरीब हो. मैंने बस बोल दिया कि 100 रुपए चाहिए. अब आप चाहे करोड़पति हो या फिर आपके पास बिल्कुल पैसे नहीं है. ओके मैम. ठीक है. So, what could be an example of a lump sum subsidy? Lump sum subsidy. I can tell you one example. So, जैसे कि एक टाइप ऑफ एग्जाम्पल ऐसा हो सकता है कि ड्यूरिंग कोविड टाइम्स एलपीजी सब्सिडी इट इज डिपेंडेंट ऑन you buying the cylinder, right? So it is conditional, I would say. कि if you don't and these days, so there are some sort of conditions here, but Ladli Yojana scheme in MP. Okay, what is that scheme, Chetan, if you would like to elaborate? I am not aware about the scheme, so I can't comment. Okay, so according to Chetan here, there's a scheme, Ladli Yojana scheme in Madhya Pradesh. 1,500 rupees is given to every woman. Okay, so that could be an example of a subsidy. This is like a amount of money which is being given, right? That can be considered as an example, Ananya, Okay, ma'am. right? कई जन आपने देखा होगा, आपने पता नहीं सुना होगा कि नहीं, कोविड के टाइम पे जिन लोगों के जनधन अकाउंट्स थे, जिन फीमेल्स के जनधन अकाउंट्स थे, उन सबके अकाउंट्स में हर महीने 500 रुपीज क्रेडिट किए जाते थे. तो दैट कुड ऑल्सो बी कंसिडर्ड एज अ लम्प सम सब्सिडी कि सबको हम 500 रुपए दे रहे हैं. अब हमें नहीं पता वो कमा रहे हैं नहीं कमा रहे हैं, क्या है सिचुएशन. बट हाँ, इसमें भी एक कंडीशन आप कहीं ना कहीं लगा सकते हो कि ठीक है, बिकॉज देयर अकाउंट्स वर रिलेटेड टू जनधन, सो ऑब्वियसली यू नो वन. Also because they are like only women. या Men don't get this lump sum amount. बट ऐसे बिल्कुल ब्लैंकेट लमसम अमाउंट आपको कभी कहीं पे भी नहीं मिलेगा कि दुनिया में हर इंसान को हम लोग ऐसा इतना पेमेंट देंगे. उस तरीके की ब्लैंकेट स्टेटमेंट हमें वैसे भी कहीं ना कहीं नहीं मिलेगी. कोई ना कोई एक टारगेट ग्रुप होगा जिसके हर इंसान को मे बी उस तरीके की ट्रीटमेंट मिलेगी. हाँ, विद इन दैट ग्रुप इवन इफ देर आर वेरिएशन वोंट बी कंसिडर्ड समथिंग लाइक दैट. दैट इज द क्लोजेस्ट टू लमसम सब्सिडी हियर. फाइन. Okay. ऑल राइट. सो ये तो हो गया कि एक अमाउंट फिक्स कर दिया. अब दूसरी चीज जो हो सकती है, द सेकंड टाइप कुड बी व्हेन I start taxing. I can have a quantity tax. What is a quantity tax? Quantity tax is tax on each unit of quantity that is purchased. Okay. So for example, let's say I am the government and I say I will start charging 1 rupee for every one pen that you sell. So rupee 1 per unit tax of the quantity.
So ₹1 of per unit tax. What will that mean? So whatever product that I'm talking about, जो भी उसका प्राइस है, उसमें वो जितने भी रुपीस का प्रोडक्ट मिलता है, मुझे उसमें ₹1 जो है, फॉर एवरी प्रोडक्ट दैट आई सेल, आई विल हैव टू गिव द गवर्नमेंट ₹1, राइट? हम एनी प्रोडक्ट? आई मीन नॉट एनी प्रोडक्ट, मतलब जिस प्रोडक्ट पे क्वांटिटी टैक्स लगा है. ओके. सो फॉर एग्जाम्पल, ब्रांड डजंट मैटर. या नो नो सी, so we are just, so I'm just telling you, maybe let's say for example, if you want to be very specific, let's say गवर्नमेंट से कि हम लोग पेन पे जितने भी क्वांटिटी ऑफ पेन सेल होंगे उस पे ₹1 टैक्स लगाएंगे. मान लो उसने ऐसी स्टेटमेंट दे दी सरकार ने, तो we have to assume some sort of uniformity. We can't bring so much of reality in this year, because then you will say कि ₹2 का पेन है, ₹10 का है, फिर 100 के पेन भी आते हैं, फिर पेन के शोरूम्स भी हैं. So we can't bring in all that. But assuming uniformity, मान लो quantity tax का क्या मतलब होगा? For a particular product, let's say T tax per unit. तो इसका क्या मतलब होगा कि for every unit that you are selling, you have to give the government T amount of tax, right? यस. So एक यूनिट अगर आपकी सेल होती है, तो अब एक्चुअली प्रोडक्ट का प्राइस क्या हो जाएगा? What will be the प्राइस ऑफ प्रोडक्ट प्लस टी. perfect? So now the price is going to be P plus T. So P plus T. This will be the new price. So this is quantity tax. This was quantity tax. कि आप quantity sold पे tax लगा रहे हो, right? You can also put tax on value or maybe the price. So maybe you can say something like this. You can comment something like this. You can say that, I will put tax in this manner. In what manner? That you can tax. So इसको हम लोग बोलते हैं value tax. Value tax. So you can tax on the price of a good. So you can put tax on the price of the good. So इसका मतलब हो गया कि मान लो suppose you say that कि please increase the prices by 10%. So 10% is the tax. 10% tax on the product price. So what does that mean? Like GST. Yes, exactly. So basically क्या हो रहा है? मान लो आपका प्रोडक्ट P यूनिट्स का है, the price of the product is P, and if the tax is 10% and the tax is on price, so what is 10% of price? P plus 0.1 P. So 10% is 0.1 P. So this is the amount of tax and this is your initial price. So what is your final price for the product? This is 1.1 P, right? या फिर अगर आप इस चीज को लिखना चाहो तो you can also write it in this manner. You can also write it in this manner कि मान लो ये 10% की जगह मान लो tau% था. This is a term which is also termed as tau. TAU. This is how you speak tau. Whosoever has studied science might be able to
recall that this is a term which is quite common when you study physics, right? Tau क्या होता है? Rotational motion में we use this, right? Anyways, fine. So what will be the price if we try to put these things in general? So if tau would be in percentages, what would be my final price? P plus tau P. So that will become 1 plus tau times P. So obviously, if you assume tau is appropriately in decimals, right? ठीक है? मैम सेकंड वन मुझे समझ नहीं आया. Which one? क्वांटिटी टैक्स. क्वांटिटी टैक्स नहीं समझ आया? यस मैम. ठीक है, तो क्वांटिटी टैक्स जो है एक ऐसा टैक्स है जिसमें हम बोल रहे हैं कि अगर मैं 1 यूनिट सेल करूंगी तो अ, जितने यूनिट आपके सेल होंगे मैं उस पे आपसे टैक्स लूंगी. तो एक तरीके से अगर आप मोर और लेस देखो तो क्वांटिटी टैक्स और वैल्यू टैक्स काइंड ऑफ सिमिलर ही दिख रहे हैं, राइट? कि नहीं? मैम जैसे एक पेन पे 1 रुपीज का टैक्स होगा, तो मैं अगर 1000 पेन बेचती हूँ तो 1000 रुपए का टैक्स देना पड़ेगा. हाँ, एग्जैक्टली. तो क्योंकि मैम वो तो सेम हो गए क्वांटिटी और वैल्यू टैक्स. क्या सेम? मैम क्वांटिटी और वैल्यू टैक्स को सेम कह सकते हैं. अगर वो 1 रुपए 10% है, फॉर एग्जाम्पल 10 रुपए का पेन है, तो उस पे 1 रुपए 10% हुआ उसका. So if you mention it appropriately, then you can make them similar. Yes. ओके. So if I say that my quantity, I mean, this is just a way of representing. But quantity tax is like saying ki for every single unit that you sell, it's on quantity. But obviously, this value tax is also applicable when your product is getting sold, right? If you're just producing that, then it यस will be applicable, right? मैम यस. मैम क्वांटिटी टैक्स प्राइस पे डिपेंडेंट नहीं है ना, मतलब अगर 20 रुपए भी है तो भी 1 ही रुपए टैक्स देना है, 30 रुपए है तो भी 1 ही रुपए टैक्स देना है पर यूनिट. हाँ, बट ऑल आई एम सेइंग इज कि अगर आप इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करो कि आप इसको इससे एसोसिएट कर दो, फॉर एग्जाम्पल, क्यों? जैसे मान लो ये टैक्स 1 है, 1 यूनिट है और ये प्राइस 10 है. तो इसको अगर मैं बोल दूं कि मेरा टैक्स 10% है, देन दे कैन बिकम सिमिलर, राइट? इन दिस सिचुएशन. यस मैम. बट क्वांटिटी टैक्स इस तरीके से, अब लेकिन यहां पे जिस तरीके से वी हैव रिप्रेजेंटेड, दिस इज नॉट डिपेंडेंट ऑन प्राइस. But this value tax, we made it dependent on price. So value tax हमेशा प्राइस के टर्म्स में कोट किया जाएगा, तो वो हमेशा परसेंटेजेस के टर्म्स में कोट किया जाता है. जैसे जीएसटी कैसे बोलते हैं? आपके जो कोर्सेज, ऑनलाइन कोर्सेज सेल होते हैं, उस पर कितना परसेंट जीएसटी लगता है? एनीबडी इज अवेयर? All the coaching classes and all of that, how much tax do they pay? 22? No, 18%. 17 or 18. 18%. सो इसको लग्जरी गुड की ट्रीटमेंट दी हुई है, राइट? सो Yes. 18% क्या? व्हाट डज 18% मीन? व्हाट काइंड ऑफ टैक्स इज दिस? Value tax. तो वो प्राइस पे है, राइट? Yes, ma'am. और मान लो किसी ने कुछ बोला है कि मान लो कोई भी इस तरीके से स्टेटमेंट दी जाती है कि आप चाहे कोई भी प्राइस रखो, सेलर चाहे कोई भी प्राइस रखे, बट सरकार को 2 रुपए जाने चाहिए, तो वो कौन सी सिचुएशन हो जाएगी? क्वांटिटी टैक्स. वो क्वांटिटी टैक्स हो जाएगा. सो इनमें डिफरेंस क्या है? वैल्यू टैक्स हमेशा प्राइस के टर्म्स में कोट किया जाता है, ठीक है? तो हमारे पास 3 सिचुएशंस हो गई क्या? लमसम टैक्स, क्वांटिटी टैक्स एंड वैल्यू टैक्स. ये चीज समझ आ गई? So, ma'am, toll tax will come under which tax? टोल टैक्स एक फिक्स्ड अमाउंट आपको पे करना पड़ता है, राइट? कि अगर आपकी कार है तो एक अमाउंट पे करते हो, Yes, ma'am.
और मान लो फोर व्हीलर ही है कार, मान लो कोई एक हैवी व्हीकल है, प्राइवेट व्हीकल का अलग सिस्टम रहता है, और जो कमर्शियल व्हीकल्स हैं उनके लिए अलग ट्रीटमेंट है, लेकिन वो एक फिक्स्ड पेमेंट ही है, दैट इज नॉट समथिंग, बट इट इज ऑन पर यूसेज बेसिस। एंड टोल टैक्स को मैं आई थिंक, हम टोल टैक्स कैन बी अवॉइडेड अगर बाय मान लो, या डिफेंस पीपल के लिए तो फ्री होता है ना। हाँ, लेकिन अब जैसे मान लो आप क्वांटिटी जो है, अब टोल टैक्स आप टैक्स कोई ना कोई एक्टिविटी या प्रोडक्ट पे देते हो ना, प्रोडक्ट या सर्विस पे देते हो, राइट? तो अगर मान लो आप टोल टैक्स कब देते हो, जब व्हेन यू ट्रैवल, राइट? सो व्हेन यू आर यूजिंग दैट रोड, सो फॉर यूजिंग दैट रोड यू आर पेइंग द टोल टैक्स, है ना? Yes, ma'am. So if you are using that road one time, then you are paying a particular amount. So toll tax is like the price of the हाईवे, यू कैन से, एक तरीके से, या जो भी रोड है, बिकॉज अलग से यू आर नॉट पेइंग एनीथिंग फॉर दैट रोड, राइट? Yes, ma'am. So it is very difficult to categorize it in these categories. Okay, ma'am. But it's an interesting point कि टोल टैक्स किस तरीके की चीज में क्लासिफाई किया जाए, अगर हम लोग सोचें तो उसको थिंक अबाउट इट अ लिटिल बिट। एनीवेज, बट लमसम तो नहीं बोलेंगे कि ऐसा नहीं है कि मान लो साल में एक बार ले लिया हमसे टैक्स और फिर उसको रोड को कितना भी यूज करो, इट कुड बी लाइक, या बट अगर अभी हमने देखा कि लमसम का ये मीनिंग होता है कि इरिस्पेक्टिव ऑफ द इनकम लेते हैं, तो उसमें अगर कोई बहुत लग्जरी गाड़ी लेकर निकल रहा है या बहुत सस्ती वाली लेकर निकल रहा है, सबको एक ही टैक्स देना पड़ता है टोल टैक्स में। हम्म, ठीक है, वो लॉजिक भी लगा सकते हैं, बट यहाँ पे वो लॉजिक लगा सकते हैं, ठीक है, बट यहाँ पे एक एक पॉइंट ऑफ व्यू ये भी है कि जो सर्विस आप यूज कर रहे हो वो हाईवे है, राइट? यस मैम। तो वो हाईवे के लिए पेमेंट ली जा रही है, Yes, यस ma'am. मैम। हाईवे यूसेज के लिए, राइट? तो हमें यस मैम। थोड़ा ये भी सोचना पड़ेगा कि हाईवे का, हाईवे यूज करने का कोई कॉस्ट है, उस पे हमसे वो बार बार किस किस तरीके से वो हमसे टैक्स ले रहे हैं। बट हाँ, जो पॉइंट आपने बोला है कि ठीक है, एज लॉन्ग एज इट्स अ फोर व्हीलर, ये प्राइस है, बात खत्म। बाय दैट लॉजिक इट्स अ लंप सम टैक्स। It is not dependent on whether you're driving a luxury car or whether you are driving a normal car, right? देन मैम इसे लमसम की कैटेगरी में ही लेंगे। ले सकते हैं, ओके। बट Ma'am, but ये पॉइंट initially, थोड़ा ट्रिकी है गाइस, ये प्रोडक्ट नहीं है, राइट? yes, ma'am. है ना? तो देखो, क्वांटिटी टैक्स, वैल्यू टैक्स, अगर कोई एक प्रोडक्ट और एक सर्विस स्पेसिफाई कर दी जाए तो मैं उसको आराम से क्लासिफाई कर सकती हूँ, क्वांटिटी टैक्स और वैल्यू टैक्स। बट यहाँ पे हाईवे यूज करना इज द सर्विस। Yes, ma'am. लेकिन अंशिका, आप ये भी तो सोचो, अगर मैं घर पे बैठी हूँ तो मेरे से कोई टैक्स ले रहा है? मैं तो नहीं यूज कर रही वो रोड, यस मैम। तो फिर अब मैं क्या करूँ बताओ, राइट? यस मैम, ये कंपल्सरी नहीं है। कंपलसरी यस। नहीं है, जिसको उस रोड पे जाना है, वो कौन सा मुंबई वाला कौन सा रोड है जो एकदम सी लिंक, कौन सा, व्हाट डू वी से दैट, इफ एनीबडी इज अवेयर, Ma'am, सी, the newly built one जो अभी बना है, एक there is a मुंबई concept में बना जो है। अटल बिल्कुल ब्रिज। जो बिल्कुल, हाँ, अटल ब्रिज, right, right. Ma'am, मैम अटल, वर्ली सी।
हाँ, लिंक। वर्ली सी लिंक शायद ऐसा नाम है उसका। हाँ हाँ एंड हाँ। मैम अटल यस ब्रिज मैम। भी तो अभी बना है, अटल का भी था इन रिसेंट न्यूज। वर्ली मुंबई सीलिंग पुराना है मैम। अच्छा। मैम वो बांद्रा वाला। मैं जो है मैं ईयर बता देती हूँ मैं कब की बात कर रही हूँ। 2015 में वो था। वर्ली मुंबई सीलिंग। तो फिर तो वो जो है, नॉट एवरीबडी यूजेस दैट। वो अगर आप टैक्स पे करो तभी आप यूज कर सकते हो, राइट। यस मैम। बट शहर में जाने के और रास्ते भी हैं। तो वो फिर एक नॉन कंपलसरी चीज हो गई, एंड नॉट एवरीबडी इज सपोज टू पे, राइट। So, okay, Ananya Singh, ma'am, maybe because road is not exactly consumable product, it is turning out to be tricky. Yes, exactly. I feel it can be quantity tax because the amount we pay is tax into number of times we go past that toll. हाँ, लेकिन फिर वो जो टोल टैक्स है ना, वो टैक्स की जगह वो प्राइस ऑफ द रोड हो जाएगा, प्राइस इनटू क्वांटिटी। But which is essentially what happens in quantity tax as well. Water tax is lump sum tax. Okay, so water tax in what sense? हर शहर का अलग सिस्टम है पानी का। चेतन, which please elaborate the scheme in your place. Anyways, आप बेसिक लॉजिक समझ गए। लमसम टैक्स क्या होता है? एक फिक्स्ड अमाउंट विच इज नॉट रिलेटेड टू योर इनकम, विच इज नॉट एसोसिएटेड विद एनीथिंग, सबको देना है। एक पर्टिकुलर ग्रुप को देना है, मान लो। क्वांटिटी टैक्स, क्वांटिटी पे लगाया जाता है, इतनी क्वांटिटी पे इतना अमाउंट देना है। वैल्यू वैल्यू टैक्स इज कोटेड इन टर्म्स ऑफ प्राइसेस। आर वी गुड विद दिस टर्मिनोलॉजी? समझ में आ गया हमको ये? यस मैम। ठीक है। यस लेट्स मूव ऑन टू द सब्सिडी पार्ट नाउ टेल मी व्हाट इज लमसम सब्सिडी। एक फिक्स्ड अमाउंट विच इज क्रेडिटेड टू पीपल्स, विच इज गिवन टू पीपल बेसिकली। वो किसी भी तरीके की फार्मर्स को एक पर्टिकुलर सेट ऑफ पीपल, ग्रुप ऑफ पीपल को सब्सिडी दे दी जाए। तो वो एक अमाउंट है विच इज नॉट एसोसिएटेड विद एनी, यू नो, कोई क्राइटेरिया से लिंक्ड नहीं है। क्राइटेरिया एज इन कि ठीक है, अगर इतना परसेंटेज टैक्स देना है या उतना अमाउंट, जितनी यूनिट्स उतना अमाउंट, इस तरीके की कोई स्कीम नहीं होगी इस तरीके की लमसम सब्सिडी में। सो दिस इज लमसम सब्सिडी। एंड गाइस, जो ये वैल्यू टैक्स होता है इसका एक स्पेशल नाम होता है जिसको एड वेलोरम टैक्स भी बोलते हैं, ठीक है। तो अगर आपको ये नाम देखने को मिले तो डोंट गेट सरप्राइज्ड। एड वेलोरम टैक्स, ठीक है। और ये जो टाउ है हमारा, ये क्या है? टैक्स रेट, ठीक है। एनीवेज, now coming back to subsidy, we can have another two different varieties of subsidies which is exactly similar to what we had in taxes. First, we can have a quantity subsidy. क्वांटिटी सब्सिडी का मतलब क्या? कि आप जितनी क्वांटिटीज में भी बाय करते हो या सेल करते हो, जो भी सिचुएशन है, उस पे गवर्नमेंट आपको एक फिक्स्ड अमाउंट पेमेंट कर देगी। सो इफ एस इज द अमाउंट अमाउंट ऑफ सब्सिडी and P is the price, then what is the final price? P Final minus price, S. P minus S. P minus S will be the final price of the product. So this is quantity subsidy. Now we will again have value subsidy as well. Value subsidy या फिर by following the same logic, ad valorem subsidy. This is quoted in terms of the price of the product, that 10% of the amount that you pay will be refunded, या 10% of the amount that you pay will be given back to you, कैश बैक मिल जाएगा, जो भी इनकी स्कीम होगी, ठीक है। तो उसको क्या बोलेंगे?
वैल्यू सब्सिडी। तो मान लो इफ सिग्मा, sorry, not, yeah, this is sigma only. This is, yeah, if this sigma is the rate of subsidy, so मेरा फाइनल प्राइस क्या बनेगा? Considering it is appropriately in decimals, so I will have P, मेरा price है original. Sigma times P is the amount that will be given back to me. So my new price will be this, right? Yes, ma'am. So मेरा जो नया प्राइस है वो क्या बन के आ जाएगा? 1 minus sigma times P, right? ठीक है? Is that all right? Yes, ma'am. Yes, ma'am. So we have, kind of understood three different types of taxes here, three different types of subsidies there. There is something called, there is another concept called rationing. एक concept होता है जिसको बोलते हैं rationing. Can you tell me the literal meaning of rationing? मैम इसमें क्वांटिटी फिक्स कर देते हैं। फॉर एग्जांपल अगर कोविड में मास्क की बहुत सारी डिमांड है तो वो फिक्स कर देंगे कि पर पर्सन को एक ही मास्क मिलेगा। ठीक है। So exactly, this is exactly what rationing means. You fix the amount that can be sold to a particular person. So usually क्या होता है? Under special circumstances, under emergency situations, most of the times, mostly related to essential things like food or health related medicines or cylinders or injections which are required, इन चीजों को राशन कर दिया जाता है। राशन मतलब कि ठीक है आपका हो गया, अब आप एक इंसान को इतना ही अमाउंट मिलेगा। सो दैट इज कॉल्ड राशनिंग। ठीक है। सो राशनिंग का क्या मतलब है कि फिक्सिंग द मैक्सिमम अमाउंट दैट यू कैन टेक। ओके, फिक्सिंग द मैक्सिमम क्वांटिटी of a good that can be purchased. That can be purchased. Purchased, used, taken, whatever. It doesn't necessarily have to be purchased. That can be used. All right. तो जितना अमाउंट राशन किया है उसके ऊपर आप यूज नहीं कर सकते। ठीक है। तो इस चीज को बोलते हैं राशनिंग। फाइन। ठीक है, चलो। सो अब हमें क्या करना है? ओके, या तो अब हमें क्या करना है? हमने ये डिफरेंट डिफरेंट तरीके की स्कीम्स देखी हैं। अब ये अलग अलग स्कीम्स के अंडर हमारे पास जो बजट कंस्ट्रेंट्स आएंगी वो हो सकता है डिफरेंट डिफरेंट टाइप की हों। ठीक है। तो अब एक बात बताओ, हम लोग जो है हर एक स्कीम का एक एक एग्जाम्पल करेंगे और देखेंगे कि उससे बजट कंस्ट्रेंट पे क्या इम्पैक्ट आता है। ठीक है। वी विल यूज सम न्यूमेरिकल एग्जाम्पल टू इलैबोरेट द पॉइंट। So let's start with lump sum tax and lump sum subsidy now. So first situation, I will give you situations. You tell me what will you do in this situation. So मान लो हमारे पास lump sum tax, हमारे पास एक कंज्यूमर है जिसको एक lump sum tax देना है ऑफ ₹100। ठीक है। This is the situation. Price of the first good is ₹2. Price of the second good is ₹4. His income is ₹1,000. ठीक है। So first, your first task will be to always make the initial budget line and then make the budget line after the change. Okay.
सो ये नंबर हम लोग हमेशा फिक्स रखेंगे, जो भी हम लोग आगे के एग्जाम्पल्स यूज करेंगे उसमें ये चीजें फिक्स रहेंगी। इनकम 1000, P1 is 2, P2 is 4, ताकि हमें बार बार चेंज ना करना पड़े। एंड देन वील कीप चेंजिंग द सिनेरियोज। ठीक है, चलो, दिस इज द मेन थिंग, दिस इज द रेफरेंस। ठीक है, फर्स्ट लमसम टैक्स। चलो जी, सो लेट्स सी, एंड आई विल ऑल्सो क्विकली मेक द बजट लाइन फॉर दिस। इसकी बजट लाइन किस तरीके से बनेगी? फर्स्ट वन, हाउ डू वी मेक दिस बजट लाइन? दिस Ma'am, 2x1 plus 4x2 is equal to 1000. perfect. So this is 2x1 plus 4x2 is equals to 1000. So this is x1, this is x2. So what is the value of x1 when x2 is 0? 500. 500. 500. So I will put 500 here. Perfect. Now what is the value of x2 when x1 is 0? 200. What is the value of, sorry, what is the value of x2 when x1 is 0? 250. 250. 250. Right? Yes, ma'am, 250. इसको हम लोग 0 रखेंगे, इसको डिवाइड करेंगे, so that will become 250. So this will become 250. So I will just join these two points, and this is my original budget line. ठीक है, चलो, so your first task is, this is your original budget line. ठीक है ना, ये आपकी ओरिजिनल सिचुएशन है, ये आपकी ओरिजिनल बजट लाइन है। अब लमसम टैक्स अगर 100 रुपीज का लगता है तो क्या होगा, ये बताओ जरा। M-100 हो जाएगा। Yes, ma'am. तो आपकी इनकम पे इम्पैक्ट आएगा, Yes, ma'am. आपसे 100 रुपीज क्लियरली छीन लिए गए हैं, और उसका क्या प्राइसेस पे कोई इम्पैक्ट होगा? No, ma'am. नहीं, No, ma'am. राइट? सो योर इनकम becomes what? 900. Becomes 900, राइट? सो जो भी मेरा लमसम टैक्स का अमाउंट है, मान लो कैपिटल टी, तो मेरी जो नई बजट लाइन है वो क्या हो जाएगी? P1 x1 प्लस P2 x2 इज इक्वल्स टू M प्लस टी, सॉरी M माइनस टी, Minus 3. या M माइनस टी, राइट? So what is my equation here? 2x1 plus 4x2 is equals to 1000 minus 100. So that is 900 here. So 2x1 plus 4x2 is equals to 900, right? So how do I make my budget line now? कैसी होगी मेरी बजट लाइन? Inward. Like it would shift inward and the slope would remain the same. तो हमने क्या देखा था कि अगर आपकी इनकम में चेंज आता है तो क्या होगा, और इनकम डिक्रीज हो गई है तो इट विल शिफ्ट इनवर्ड्स, राइट? सो दिस विल बिकम 450 हियर, and 25 times 9 is 5. 175. No. Oh, okay. I think I did. 9 times 25. What is 9 times 25? 175 ही होता है ना? नहीं, गलत बोल दिया। 4, 3, अच्छा 225। Yes, ma'am. 226। Ma'am, 2 to 5. हाँ, 225, yeah. Half of this, not half of this, 225. So we'll just join these 2 points, right? ठीक है? This is what happens when you have a lump sum tax. Is that okay? Yes, ma'am. ठीक है, very good. अच्छा, if it would have been a lump sum subsidy, then lump sum subsidy of 100 rupees. वो हमारी इनकम में ऐड हो जाता। वेरी नाइस। तो मेरी नई इनकम कितनी हो जाती ओरिजिनल सिचुएशन से? 1100। परफेक्ट। सो अगर एस अमाउंट ऑफ सब्सिडी मिली मुझे लमसम, तो P1 x1 प्लस P2 x2 is equals to M plus capital S, right? So what is my new equation? 2x1 plus 2
plus 4x2 is equals to 1100. 1000 plus 100, which is 1100. So what will be my new equation? अगर मुझे ये यहीं पे प्लॉट करना हो तो क्या होगा? Ma'am, it would shift outward. Yeah, so that will become 6 5 sorry 550 on 550 there. Yes, ma'am. 550 and 275. Yes, ma'am, 275. So ये हो गया. तीनों केसेस में स्लोप सेम रहेगी, राइट? दिस इज सब्सिडी, दिस इज टैक्स. ओके, दिस केस इज ओके, Yes, ma'am. फाइन. चलो, ओके, सो वेरी गुड. So this was the case for lump sum tax and lump sum subsidy. So lump sum tax and lump sum subsidy, they don't change your prices, they affect your income. Now coming back to, let's say for example, value tax or value subsidy. ठीक है? So let's say I have the same scenario here. This is my same scenario. यही मेरा scenario है जो मेरा reference है. ठीक है? And let's say if I say the following. मान लो मैंने ये बोला कि so third situation is if I say the following कि there is a 10% tax or you can say value tax on good one. ठीक है? तो अब इससे क्या चेंज आएगा मेरी बजट लाइन पे, वो आपको बताना है. So what should we do? Ma'am, that means the tax is on the price of good one. So So our P1 would. 2 का 10% होगा ना? Yes, ma'am. वेरी नाइस. तो बताओ फिर. तो मेरे गुड वन पे पहली बात तो जो टैक्स है, द टैक्स इज ऑन फर्स्ट गुड, राइट? 2.2x1 Yes, ma'am, 2.2. 4x2 is equal to 1000. तो हमने क्या देखा था कि जब भी मुझे टैक्स दिया हो तो वो क्या हो जाता है, 1 प्लस टैक्स रेट. व्हाट इज माय टैक्स रेट हियर? अगर डेसिमल्स में कन्वर्ट करना पड़े तो 0.1 0.1. Yes, ma'am. टाइम्स माय प्राइस P1. Yes, ma'am. सो व्हाट इज दिस? दिस इज 1.1 P1, राइट? सो न्यू प्राइस कितना बन गया? 2.2. So 2.2, which is basically 1.1 times 2, which is 2.2, right? तो मेरी नई बजट लाइन क्या होगी? 2.2x1 इन plus 4. पहले जनरल फॉर्मेट में बताओ कि अगर नंबर्स नहीं दिए होते, मान लो इसको टी ही बोलते. 1 plus T P1 plus into x1 वेरी नाइस. plus P2 x2 is equal to M. परफेक्ट, राइट? Yes, ma'am. अगर मुझे इस सिचुएशन में बजट ऑफ सॉरी स्लोप ऑफ बजट लाइन निकालनी हो तो क्या डायरेक्टली निकाल सकती हूँ मैं? Yes, ma'am. Like minus P1 by P2. यस. तो वो क्या होगी यहाँ पे? Minus 2.2 upon. इन जनरल अगर कोई आपको प्राइस वैल्यू टैक्स दे दे तो आप क्या करोगे? आप सिंपली -1 प्लस जो भी आपकी टैक्स रेट है टाइम्स P1 डिवाइडेड बाय P2 कर दोगे, राइट?
Yes, ma'am. अगर वो टैक्स किस पे है, फर्स्ट गुड पे है। अगर ये सेकंड गुड पे होता तो क्या करते हम? तो यही जो चीज है, यहाँ पे सिर्फ P1 रहता और ये 1 + T यहाँ पे हो जाता, यस मैम। तो वो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाता, राइट? यस मैम। सो ये कोई फॉर्मूला नहीं है। कई बच्चे इसको फॉर्मूला समझ के याद कर लेंगे, इसलिए मैं इसको यहाँ ऐसे नहीं लिखूंगी। ठीक है, दिस इज नॉट अ फॉर्मूला. Formula is something which is applicable in all situation. This is very conditional on us applying value tax on first good, right? But you can find the new slope, Yes, ma'am. right? ठीक है, तो अब एग्जाम्पल जो भी है उसके हिसाब से हमारी बजट लाइन क्या बनेगी? 2.2x1 प्लस 4 टाइम्स x2 इज इक्वल्स टू 1000, राइट? है कि नहीं? तो क्या चेंज आएगा फिर बताओ? X1 change हो जाएगा and X2 will remain the same. तो ठीक है, फिर बताओ x2 जो है, x2 की वैल्यू व्हेन x1 इज 0 वो कितनी हो जाएगी? 250. तो बेसिकली ये पॉइंट तो एज इट इज रहेगा. ठीक है, व्हाट अबाउट द अदर पॉइंट? दूसरा पॉइंट x1 की वैल्यू क्या हो 450, जाएगी? या 454.5. सो x1 विल बी या x1 विल बी 1000 डिवाइडेड बाय 2.2, राइट? तो अब ये Yes, बताओ, ये 500 से बड़ा तो नहीं होगा, कि छोटा होगा कि बड़ा होगा 500 से? less than 500. Less than 500, so somewhere here. So I can make it like this. है कि नहीं? And does it make sense that the slope has become steeper? Slope is P1 by P2. तो अब जब टैक्स लगा P1 पे, तो प्राइस ऑफ फर्स्ट प्रोडक्ट तो महंगा हो गया ना? Yes, ma'am. तो दैट हैज बिकम मोर एक्सपेंसिव, Yes, ma'am. राइट? इज दैट ऑल राइट गाइस? दिस इज क्लियर? मैम ये 2.2 वाली इक्वेशन के बाद क्या क्या, वो मुझे नहीं समझ ये इक्वेशन के बाद क्या किया? यस मैम। ये हमने इसको प्लॉट किया बस. मैम फिर इसका स्लोप कैसे निकाला? स्लोप तो निकाला ही नहीं है अभी. ओके मैम। आप बता दो अब इसका स्लोप. फर्स्ट लाइन का स्लोप क्या है? माइनस रेड लाइन का स्लोप क्या है? -2 डिवाइडेड बाय 4, P1 by P2, right? यस मैम। So that this is -1 by 2. यस। Yes, ठीक है. What about this slope? इस लाइन का स्लोप क्या है? कभी आपको इस तरीके की लाइन का स्लोप निकालना ना, जो डाउनवर्ड स्लोपिंग है और 2 पॉइंट्स पे ऐसे कट करती है, दिस अमाउंट डिवाइडेड बाय दिस, दैट इज आल्सो गिव्स यू स्लोप. 250 डिवाइडेड बाय 500, दैट्स अ क्विक वे. बट या, Slope is the tan theta, right? That's why. so tan theta is your Perpendicular. perpendicular divided by base. ठीक है, तो इस लाइन का स्लोप क्या होगा? -2.2 by 4. So Like minus 250. 2.2, because that is the new price Yes, of the ma'am. first product, divided by the price of the second product, which is 4, which is how much? -1.1 divided by 2. So this is bigger than this magnitude wise, Yes, ma'am. right? So that is why this is steeper. Is this all right? Yes, ma'am. ठीक है. How will you, everybody okay with it?
अंशिका, आर्याकी, भव्या, चेतन, दुर्गा, काव्या, माहिर, मंजू, नर्मदा, प्राची, रिया, शशि, तानिया, वानिया। मैम इसका फॉर्मूला स्लोप का -P1/P2 होता है। हाँ, ओके। and not just this P1 and P2, so don't get confused with this. Overall first product का कितना प्राइस है, ओके। right? यस। ठीक है, everybody okay? Let's move on to the next thing. Okay, before doing that, let's take a quick 5 minutes break and then we'll continue. Though for those of you who don't want to get into the break, tell me what will be the new budget line. New budget line if 10% value subsidy on good 2 is provided. And these are the starting initial conditions. Okay, this is your task. Okay, so guys, I'll see you in 5 minutes. Let's start again at 7 sharp. Thank you. Chalo, let's start with this now. Tell me, how should we proceed? Ma'am, there is a subsidy on good price of good two because it's a value subsidy. So, Yes. ma'am, the price of good two would be 3.6 because we would minus the subsidy a percent from the price. So that would be 10% of 4 would be 0.4. So 4 minus 0.4 would be 3.6. So this is the formula that we use, right? Yes, ma'am. Where S is my rate of subsidy. Yes, ma'am. So what is this? P2 1 minus S. So my P2 value is 4 Yes, ma'am. and 1 minus. What is my subsidy rate in decimal? 0.1. 0.1. So this is 4 times 0.9. So this is 3.6. 0.6. What is my new budget line? 2x1 plus 3.6x2 is equal to 1000. So this is my new budget line, right? So what is going to happen now? अब मुझे जो है मेरे लिए ये चीज रेलेवेंट है. Guys, just spare me for 1 second. Just 1 second. Yeah, okay. So this is my new budget line. Yeah, so मेरे लिए जो relevant diagram है, just a second. Yes, this is my relevant diagram. अब मुझे जो है इस डायग्राम में अपनी नई बजट लाइन को इनकॉर्पोरेट करना है. So what am I going to do now? Ma'am, there will be a change in x2 and x1 Change in- will remain. X1 will be the same Yes, ma'am, x1 Yes, will remain. ma'am. and X2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1000 डिवाइडेड बाय 3.6. पहले कितना था? 1000 डिवाइडेड बाय 4. तो अब यहाँ पे लेके आए या यहाँ पे लेके आए? Upward. Ma'am, upward. So because obviously denominator is smaller, so this is 1000
divided by 3.6. So this is my new budget line. This is my new budget line, right? And why is that happening? What is the slope of this line? Minus P1 by P2, which is again minus 1 by 2. What happened here? What is the slope of this line? minus 2 by 3.6. Minus 2 by 3.6. तो पहले वो -2 डिवाइडेड बाय 4 था, अब ये -2 डिवाइडेड बाय 3.6 है. So 3.6 is smaller, so the overall magnitude wise the number gets bigger. Yes, ma'am. So this line is more steep and this is flat. Yes, ma'am. Right? So this is what is happening. And subsidy की वजह से आपका budget set थोड़ा expand भी होना चाहिए. That makes sense, right? If Yes, your ma'am. prices decrease, your budget set should expand, which is happening कि पहले ये सब possibilities थी, अब possibilities बढ़ गई हैं. Right? Yes, ma'am. All good so far? And मैम yes, go ahead. मैम एक्सपेंड किस सेंस में हो रहा है? एक्सपैंड मतलब मान लो आप अपनी जिंदगी में सिर्फ 2 ही गुड्स खरीदते हो, एक का प्राइस है 2, एक का 4 और आपकी इनकम है 1000, ठीक है? यस मैम. दूसरी सिचुएशन है कि एक पहले गुड का प्राइस है 2, दूसरे गुड सस्ता हो गया 3.6 प्राइस हो गया उसका और आपकी इनकम अभी भी उतनी है, तो क्या आपकी जिंदगी में ऑप्शंस बढ़े हैं कि कम हुए हैं? ओ मैम बड़े हैं. क्यों? क्योंकि जो पहले 4 रुपए के साथ जो ऑप्शंस थे वो तो है ही है, यस मैम. है ना? लेकिन थोड़े ऑप्शन और बढ़ गए, मैम आप ज्यादा गुड्स ले पाएंगे. ज्यादा गुड्स ले पाएंगे. एग्जैक्टली. सो दिस इज व्हाट वी आर सेइंग कि पहले जिंदगी में ये ऑप्शन तो थे ही, यस मैम. अब ये ऑप्शन तो है ही, इसके अलावा जिंदगी में और एक्सपैंड हो गया ना मेरे ऑप्शंस, यस मैम. तो ये मेरे एक्स्ट्रा एक्सपैंडेड ऑप्शंस हैं. ठीक है? ओके मैम. सो दिस इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू से हियर. ओके, सो फाइन. एंड गाइस, अगर आपको किसी ने क्वांटिटी टैक्स या क्वांटिटी सब्सिडी दे दी तो क्या करोगे? क्वांटिटी टैक्स दिया तो वो आप आराम से देखो कि वो प्राइस के टर्म्स में तो डेफिनेटली कोटेड नहीं होगा, वो एक नंबर कोटेड होगा कि प्राइस टैक्स इज 1 यूनिट पर क्वांटिटी. तो उस तरीके से आप प्राइसेस में एडजस्टमेंट कर सकते हो. Ma'am, tax is 1 rupee per quantity or like, वन टैक्स इज रुपीस पर यूनिट. yes. Okay, So so we if have I to say, find we have to find in rupees first, like in the terms of price. नो सो टैक्स तो वैसे भी देखो, टैक्स तो पैसा ही होगा ना. Yes, ma'am, but like it's given for per quantity, right? In the quantity tax wala. तो पर यूनिट, तो प्राइस भी पर यूनिट क्वांटिटी होता है ना, Yes, ma'am. है ना? Yes, ma'am. एक ही क्वांटिटी का तो प्राइस बताते हो. So ma'am, इस केस में फिर मान लो मेरा क्वांटिटी टैक्स है 2 रुपीज, ठीक है? yes, ma'am. तो इसका क्या मतलब होगा कि अगर गुड का प्राइस पी है और मुझे 2 रुपीज क्वांटिटी टैक्स देना है, तो मेरा न्यू प्राइस क्या हो जाएगा? P+2. Yes, ma'am. और अगर 2 रुपीज क्वांटिटी सब्सिडी है तो क्या होगा? न्यू प्राइस P minus 2. 2. ये Yes, ma'am. सिचुएशन है, Yes, ma'am. उसको हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं. Yes, ma'am. ठीक है? तो पहले आराम से प्यार से क्वेश्चन पढ़ना है कि वो क्या दिया हुआ है. पहले तो आइडेंटिफाई करो कि वो किस तरीके का टैक्स है, उसके बेसिस पे देखो उसमें आपको डू यू हैव टू मेक सम एडजस्टमेंट्स इन योर इनकम और योर प्राइसेस और व्हाट. दैट इज गोइंग टू बी योर मेन गोल. ओके? एंड देन यू कैन, देन फ्रॉम दैट पॉइंट ऑनवर्ड्स, उसके बाद तो देन इट्स जस्ट एन इक्वेशन, देन यू हैव टू सॉल्व इट. You will do one question with me? And ma'am, Yeah. value tax will be given in terms of percentage. Kitna percent, and then we'll find from there ki kitna Yes. tax, and then we'll find the price of. Yes, yes. Or you can use this formula. Yes, ma'am. 1 plus tau या 1 minus s. Fine? Got it, ma'am.
Okay, so let me just do one example with rationing as well. So let's say, for example, if somebody says this, if somebody says that, again, let's consider the same situation. Okay, I copied something else now. ठीक है. So, yeah. So this was my initial situation. And somebody says the maximum quantity of good one that you can buy is 400 units, right? If somebody says that, so this is rationing. So what kind of constraints that they have put you into? First of all, you have to ensure that this holds that 2 times x1 plus 4 times x2 is less than or equal to 1000. पहले तो ये चीज होनी चाहिए, right? Yes, ma'am. This should hold. This is one constraint. This is called my budget constraint, right? And somebody said now that for good one, the maximum amount of product that you can buy or you can maybe consume is 400 units. So how do I convert this in mathematical form? x1 less than equal to 400. X1 has to be less than or equal to 400, right? So I basically have to draw both these things. है कि नहीं? Yes, ma'am. तो ये तो मैं ड्रॉ कर ही रही थी. What was this? It was this area. This entire area, right? है कि नहीं? Yes, ma'am. Now I also have to make sure that I draw this. Now what is this? How do I draw x1 less than equal to 400? हम x1 इक्वल टू 400 एक वर्टिकल लाइन बन जाएगा 400 पे. तो x1 is equals to 400. Can I draw that? ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं इसको. क्या ये एक लाइन हो गई जो क्या है? x1 is equals to 400, right? Yes, ma'am. And x1 less than equal to 400 would be anything which is like this, right? Yes, ma'am. So what is the common area between this and this? 250 and the 400. So basically this line, Yes, ma'am. area, right? तो मेरे लिए जो relevant area हो गया वो कौन सा हो गया? It is this area. है ना? तो आगे से मुझे ये सब करने की जरूरत नहीं है. जो भी मेरी रैशनिंग अमाउंट होगा वहां पे मैं एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दूंगी. और अगर मेरी रैशनिंग गुड x2 पे हो रही है, मान लो 100 यूनिट्स होता, तो मैं एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर देती, राइट? ठीक है. इधर हम रेशनिंग सेकंड गुड की नहीं कर रहे. नहीं, हम अभी हमें फर्स्ट गुड की ही बारे में ही बोला गया है. मैम इसका ये मतलब है कि x1 आपका 400 ही होना चाहिए और उसके साथ मतलब जितना भी वो x2 आप आता है बजट के अकॉर्डिंग उतना x2 आप ले लो. नहीं, इसका मतलब ये है कि x1 400 या उससे कम होना चाहिए.
बस ये है। और तो मैम इससे x2 के बारे में कुछ कंक्लूजन नहीं निकाल सकते? अब आप मान लो x1 की वैल्यू 400 कंज्यूम करो, ठीक है? यस मैम। तो आप x1 की वैल्यू 400 यहाँ पे भी कंज्यूम कर रहे हो, यस। लेकिन nobody is forcing you to consume it here. If you want, you can consume it here also ना, कि I don't want to consume any x2. ओके मैम, मतलब उस जो एक स्ट्रेट लाइन है उसमें कहीं पर भी जा सकते हैं? हाँ जी। तो अब आपकी एक्चुअल बजट लाइन, इसको मैंने डॉटेड क्यों कर दिया? अब क्योंकि आपकी एक्चुअल बजट लाइन जो है वो ये हो गई। नाउ योर एक्चुअल बजट लाइन इज दिस, कि ये पूरा एरिया, ये पूरी एक लाइन है, और एक ये पूरी लाइन हो जाएगी। दिस इज योर बजट लाइन। ओके, ओके मैम। कि आप यहाँ पे कहीं पे भी ऑपरेट करो, आप यहाँ पे कहीं पे भी ऑपरेट करो, या फिर आप अंदर कहीं पे भी ऑपरेट कर सकते हो। दिस इज नो लॉन्गर विद इन योर एक्सेस, ओके मैम। राइट? क्योंकि अब आप यहाँ तो कंज्यूम कर नहीं सकते। मैम फिर मेरी इनकम पूरी एग्जॉस्ट नहीं होगी ना इस सिचुएशन में? हाँ, नहीं हो सकता है कि मेरी इनकम बची रह जाए। यस, ओके। दैट इज अ पॉसिबिलिटी। सो मान लो अगर मैं यहाँ पे हूं, तब तो पूरी एग्जॉस्ट हो रही है, यस मैम। लेकिन मान लो मैंने x2 का कुछ भी अमाउंट रिड्यूस किया, तो हो सकता है कि वो एग्जॉस्ट ना हो, राइट? सो एज लॉन्ग एज वी आर हियर, वी आर स्टिल एग्जॉस्टिंग एवरीथिंग, बट इफ वी स्विच हियर, वी आर नॉट, ओके मैम। राइट? बट द वे टू ड्रॉ दिस इज दिस इंटायर रीजन, ये आपका पूरा बजट लाइन बन जाता है, एंड दिस नो लॉन्गर इज अ पार्ट दैट यू आर कंसर्न अबाउट। फाइन, ठीक है? चलो एक दो क्वेश्चन करोगे? Let's try. यस मैम। So we have kind of understood the basic things. Let's try to do some problems now. Let me just grab some questions. So they have come earlier in your past papers. All right, fine. This is your problem. This is your question. Let's try to read this question first. I'll try to explain it to you, and then we will see what to do here. Okay, so the question goes like this. A consumer always purchases at least 4 units of good X. ठीक है? Good X. Always purchases at least 4 units of good X. ठीक है? चलो उसके बाद क्या बताया हुआ है? He pays a price P up till 17 units of good X. So what does that mean? Till you have bought 17 units of good X, what is the price that this person is paying? P. So till X is
less than or equal to 17, price is equal to P, right? After that, what is the situation? If he purchases more than 70 units, then he must pay 10% more on each additional unit. सो इसका मतलब मान लो वो इंसान 18th यूनिट खरीदने जाएगा तो उसको 10% एक्स्ट्रा पेमेंट करनी पड़ेगी। जैसे जैसे वो 18th यूनिट खरीदता है तो P+10% देना पड़ेगा। 19th यूनिट पे भी P+10% देना पड़ेगा। 20th पे भी। इस तरीके से स्कीम चल रही है, राइट? फाइन, Yes, ma'am. राइट? Yes. तो क्या बोला है कि when x is greater than 17, what happens? What is the price? Of good x? 1.1p. So 1.1p. Everybody understood this point? Yes, ma'am. क्योंकि वो 10% पे कर रहा है। यहां तक समझ आ गया? Yes, ma'am. Everybody, I know this question seems too much at this point, but it's very easy. We will break it down step by step. ठीक है? यहां तक चीजें समझ आ गई कि 17 यूनिट से कम पे प्राइस रहता है P, 17 यूनिट से ऊपर आप 10% एक्स्ट्रा पेमेंट करने लग जाते हो, राइट? एंड आप हमेशा एटलीस्ट 4 यूनिट्स खरीदते हो। तो इसका मतलब इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ? X हैज टू बी आइदर 4 और ग्रेटर देन 4। दिस इज ऑल्सो वन कंडीशन, Yes, ma'am. राइट? यहां तक कोई प्रॉब्लम किसी को? अभी तक ये तीनों स्टेटमेंट के बेसिस पे हमने ये 3 स्टेटमेंट्स लिखी हैं, राइट? नाउ taking the other good as the numerator. We've understood what is numerator. So what does that mean? The other good is, what is the property of the other good? Price of the other good is, Price 1. price is 1, right? So whatever that good is, other good बोल दिया, उसका प्राइस है 1, ठीक है? फाइन। अब नाउ उसके बाद उन्होंने क्या बोला? सेट अप द बजट इक्वेशन। नाउ सेट अप द बजट कंस्ट्रेंट। अब बजट कंस्ट्रेंट बताओ एंड ग्राफिकली शो द बजट सेट। तो बजट कंस्ट्रेंट बनाओ पहले तो, और जो है बजट कंस्ट्रेंट बनाओ और फिर ग्राफिकली उसको शो भी करो। तो यहाँ पे इन्होंने हमें इनकम नहीं बताई है, तो मान लेते हैं कि इनकम है M, ठीक है? सपोज इनकम इज M। And ma'am, quantity of good 2. क्वांटिटी ऑफ गुड 1 भी नहीं बताया ना, क्वांटिटी ऑफ गुड 2 भी नहीं बताया। वो Oh, थोड़ी ना yes, बताते ma'am. हैं, Yes, डोंट टेल अस दैट, ma'am. राइट? है ना? Ma'am, but यहाँ we'll तक assume it to be like anything, na? X over Y. वी विल यूज X एंड Y। हाँ, yes. तो अदर गुड को जो है, अदर गुड की क्वांटिटी को हम Y से ट्रीट करेंगे, ठीक है? PY की वैल्यू हो जाएगी 1 और PX का प्राइस उन्होंने बताया हुआ है, और गुड X और गुड Y है, और इनकम है M। यहां तक की कहानी में कोई समस्या किसी को? ऑल गुड? इट इज वेरी सिंपल, ट्रस्ट मी। If you want some time to think about it, take some time, take 2 minutes. Read the question once again and see what we have written here. और किसी को कोई प्रॉब्लम हो रही है इस चीज को समझने में तो लेट मी नो।
फाइन, चले आगे। Yes, ma'am. चलो चलते हैं फिर। देखो, तो अब मुझे जो है बजट कंस्ट्रेंट बनानी है, राइट? तो आप सिंपली ये सोचो, बजट कंस्ट्रेंट का मतलब क्या? कि वो इस इंसान के पास स्पेंड करने के लिए कितने पैसे हैं, मतलब बेसिकली वो अलग अलग क्वांटिटीज ऑफ एक्स एंड वाई कितना कंज्यूम कर सकता है, यही बताना है कि नहीं? तो अब इन्होंने मुझे दो सिचुएशंस दी है ना, दे हैव गिवन मी टू सिचुएशंस। इफ द क्वांटिटी ऑफ गुड एक्स is less than equal to 17 and if it is greater than 17, right? Yes, ma'am. है ना? तो जब क्वांटिटी लेस देन इक्वल टू 17 है तो मेरा प्राइस ऑफ फर्स्ट गुड कितना है? P P। और मेरा प्राइस ऑफ सेकंड गुड कितना है? 1 और मेरी इनकम कितनी है? M M. तो क्या मुझे बजट लाइन बनानी आती है उसके लिए? yes ma'am क्या होती है वो? Px plus Py is equal to और Y is equal to M. बिकॉज पी वाई 1 है तो मैं उसको 1 लिख दूंगी तो वो सिर्फ वाई बच जाएगा। Ma'am, Py is Y, right? या पी वाई इज 1। Ma'am, price is 1 and न्यूमरेयर ना, इट्स अ न्यूमरेयर गुड। द अदर गुड वाई गुड, गुड वाई इज न्यूमरेयर, अच्छा हाँ, okay, right. तो Yes, उसका ma'am. प्राइस 1 होगा। हम्म. हाँ, वो जो 10% वैल्यू है वो कब एप्लीकेबल होगी? जब एक्स की वैल्यू 17 से बड़ी होगी। तो अभी हम तो उस सिचुएशन में आए ही नहीं है, राइट? yes Excuse ma'am me. यस यस। मैम यहाँ पे ये नहीं होगा मैम कि पी एक्स प्लस पी वाई into y is equal to m, then we will divide it by py as a numerator. ठीक है, ओके, सो यू वांट टू से दिस एंड यू वांट टू डिवाइड इट बाय पी वाई। Yes, sir. ठीक है, तो फिर ये जो वैल्यू है यही तो आपको दी हुई है ना, पी। Then p is a price of good x. या Sorry, one. या Then ma'am, it will be a p divided by py, no? so then you will not be able to get rid of all of this na. Sorry, ma'am, I didn't get I it. am saying your py is 1. If your py is 1, then what happens? Ma'am, but ma'am, here we will do py divided by py, no, ma'am, for it 1. We will ठीक not assume the value of py is equal to 1. ठीक है, देखो मैं जब सब कुछ कार के टर्म्स में ले रही हूँ Yes, ma'am. या पेन के टर्म्स में ले रही हूँ, Yes, ma'am. तो देन पेन बिकम्स माय यूनिट ना, Yes, ma'am. सो दैट इज माय करेंसी। 1 पेन, 2 पेन, 4 पेन, 8 पेन। Sorry, ma'am, I got confused, ma'am. Sorry. सो आई एम सेइंग कि ये जो P है, दिस हैज अ प्राइस P। Yes, ma'am. So they did not say it is P rupees. Yes, ma'am. This is already in terms of X. This is already in terms of the numeraire good. Ma'am, but it is a price of good x, no, ma'am. ठीक है, Then how it will be in terms of y? देखो मैं समझ सकती हूँ आपको ये कंफ्यूजन हो रहा है कि ये रुपीज में है, यही बोल रहे हो ना आप? No, ma'am. Yes, ma'am. कि ये P रुपीज है इसका प्राइस Yes. ना? No, ma'am. P in terms of good x, ma'am. I हाँ, was saying. दिस इज ऑलरेडी P इन टर्म्स ऑफ गुड एक्स, क्या मतलब होगा? प्राइस तो किसी यूनिट में होगा, Yes, ma'am. इसकी यूनिट गुड वाई है। दिस इज व्हाट Okay, आई एम ma'am. I सेइंग, got it. Okay, ma'am. राइट? Okay, ma'am. दिस इज गुड Ma'am, एक्स। ma'am, here it is not clearly mentioned that it is term of good y. We assuming it. Yeah, but all I'm saying is there is no need to get too much into involved in this.
Whenever they mention that it is numeraire, that means it is in terms of the other goods. ओके मैम, ओके तो नाउ पी वाई या जो भी न्यूमेरायर बोला है वो 1 है, बाकी सब उसके टर्म्स में दिया हुआ है. ओके मैम, थैंक यू मैम. या ओके. सो हाँ, yes. So price of good X is P, price of good Y is 1, and my income is M, right? So this is my budget constraint. Yes? Yes, ma'am. Everybody okay with this much? यस मैम. यस मैम. है ना? फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद इन्होंने क्या बोला कि अगर आप 17 यूनिट्स से ज्यादा खरीदते हो तो आप पे क्या प्राइस एप्लीकेबल होगा? 1.1 टाइम्स पी, राइट? Yes, ma'am. फॉर, लेकिन वो जो एक्स्ट्रा प्राइस है वो कौन सी यूनिट पे होगा? 18th Good यूनिट X. पे या 19th यूनिट पे या 20th यूनिट पे, ऐसे ही होगा ना? Yes, ma'am. तो मान लो अगर आपकी एक्स की वैल्यू 17 से बड़ी है, राइट? तो मान लो फॉर एग्जाम्पल, जस्ट टेकिंग अ न्यूमेरिकल एग्जाम्पल टू एक्सप्लेन द प्रॉब्लम, अब 20 यूनिट्स मान लो आपने गुड एक्स की खरीदी, ठीक है? तो क्या हुआ होगा, किस तरीके से आपने पेमेंट की होगी? 17 यूनिट्स के लिए तो आपने पी प्राइस पे किया होगा, यस, यस और मैम. जो एक्स्ट्रा 3 यूनिट्स हैं उसके लिए क्या प्राइस पे किया होगा? दिस, 1.1 पी. है ना? यस मैम. राइट? तो ऑन द लेफ्ट हैंड साइड मुझे क्या लिखना होता है? जो मैं एक्सपेंडिचर करने वाली हूं यही लिखना होता है ना? और राइट हैंड साइड पे मेरी इनकम होती है, इस इक्वेशन में यही होता है ना? यस मैम. राइट? तो अब मेरी जो एक्स यूनिट्स हैं, अब मेरी एक्स की वैल्यू जो है वो 17 से बड़ी है ना? यस मैम. तो अगर मैं इसमें से 17 माइनस करूंगी तो क्या आएगा मेरे पास? वो यूनिट्स जिसके लिए मुझे नया प्राइस पे करना है. यस मैम. तो ये जो 3 था ये कैसे आया था? आपने 20 में से 17 ही तो माइनस किया था ना? Yes, ma'am. तो मान लो अगर आप 21 यूनिट्स खरीदते हो तो आप 4 यूनिट्स पे ही तो 1.1 टाइम्स पी पे करोगे, राइट? तो इस पे आप कितना खर्चा कर रहे हो? इतनी यूनिट्स पे कितना खर्चा कर रहे हो? 1.1 टाइम्स पी 1.1 पी. प्लस बाकी जो बच गई, जो पुरानी 17 यूनिट्स थी उस पे आपने ऑलरेडी कितना खर्चा कर दिया? इतना कर दिया ना? तो दिस Yes. द टोटल एक्सपेंडिचर दैट यू हैव डन ऑन गुड एक्स, यस मैम. राइट? ये लॉजिक समझ आया? इतना पार्ट Yes, ma'am. सबको समझ आया? यस मैम. यस. ठीक है. तो ये तो हो गया जो हमने खर्चा किया गुड एक्स पे. अब हमारे पास गुड वाई भी तो है ना? तो गुड वाई क्या होगा? वाई, एंड दैट शुड बी इक्वल टू माई एन. इनकम, राइट? ये चीज क्लियर हुई? यस मैम. ठीक है. तो अब इस चीज को सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आएगा? 1.1 टाइम्स पी एक्स माइनस 17 टाइम्स 1.1 पी प्लस 17 पी प्लस वाई इज इक्वल्स टू एम एक्स ग्रेटर देन 17. इसको थोड़ा सा जब आप और सिंप्लीफाई कर लोगे तो क्या हो जाएगा ये? तो बेसिकली this becomes 1.1 px and then 17p
-17 टाइम्स 1.1p। तो इसमें से आप ठीक है, 17p अगर कॉमन लेते हो तो क्या हो जाएगा? 1 माइनस 1.1p। तो दिस इज बेसिकली y इज इक्वल्स टू m प्लस 17p times 0.1. This is what it becomes, right? Yes, ma'am. 1.1p times x plus y is equals to m plus 1.7p, right? तो ये मेरी बजट कंस्ट्रेंट कब हो गई? जब भी x की वैल्यू 17 से एक्सीड हो जाती है। ये क्या हो गई? जब भी x की वैल्यू 17 या उससे कम होती है। तो अब पहले मेरी बजट लाइन बड़ी सिंपल होती थी, हर जगह सेम। अब क्या हो गया है? अब उसमें ब्रेक्स हो गए हैं कि 17 के लेफ्ट साइड में कुछ और, राइट साइड में कुछ और, राइट? Yes, ma'am. तो आपको ये दोनों चीजें प्लॉट करनी है। और एक और कंस्ट्रेंट का जो हमें ध्यान रखना है वो क्या है? कि हम हमेशा एटलीस्ट 4 यूनिट्स तो खरीदते ही हैं, विच इज दिस। सो जब आप अपना बजट सेट प्लॉट करो तो उसमें ये कंस्ट्रेंट भी आपको प्लॉट करनी है। तो असेंशियली आपको क्या करना है? यू हैव 3 इक्वेशंस टू मेंटेन, विच इज दिस, दैट px plus y is equals to m whenever x is less than equal to 17, and then 1.1 px plus y is equals to m plus 1.7 p whenever x is greater than 17 and x has to be greater than equal to 4। ये तीनों इक्वेशंस को प्लॉट करके जो भी कॉमन एरिया बनता है वो क्या बनेगा? और यहाँ बजट दैट विल बी माय बजट सेट, राइट? है कि नहीं? यस ठीक है। तो कोई भी एक पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ p आप ले सकते हो। कंसिडर p एज 1 एंड देन ट्राई टू, सपोज p इज 1, सपोज, एंड देन ट्राई टू प्लॉट दिस। दिस इज योर होमवर्क। ओके, इज दैट ऑल राइट? मैम एक बार आप ओवरव्यू दे सकते हो कि इसमें क्या किया हमने? हमने जो इक्वेशन दी हुई है उसको यस। मैथमेटिकल इक्वेशंस में कन्वर्ट किया, जो स्टेटमेंट दी हुई है। यस मैम। ठीक है, फिर उन्होंने जो जो चीजें हमें इंग्लिश में बोली हुई थी हमने उनको मैथमेटिकल टर्म्स में कन्वर्ट किया कि x लेस यस। देन 17 पे हमारी बजट लाइन क्या होगी, x ग्रेटर देन 17 पे हमारी बजट लाइन क्या होगी। यस मैम। और हमें इन्होंने ये भी बोला है कि आपको x हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 4 इंश्योर करना है कि ऐसा हो, यस मैम। राइट? तो हमने यहाँ पे किया। फिर सिर्फ इसमें एक ही पॉइंट था जो ट्रिकी था, वो ये था कि जब आप 18th यूनिट, 19th यूनिट, 20th यूनिट खरीदोगे तो एडिशनल यूनिट्स पे हायर प्राइस लग रहा है, पुरानी यूनिट्स पे नहीं। तो उस चीज का हमने ध्यान रखा। यस मैम। और फिर हमारा ये 3 इक्वेशन आ गई। ओके। और फिर हम इसको प्लॉट कर देंगे, दैट विल बिकम आवर बजट सेट। यस मैम। ठीक है। यस मैम। So your task is to figure out how do we plot these 3 equations in the graph. Then in the question, ma'am, what is the income level? Nobody, अच्छा मैं इनकम दे देती हूँ। इनकम लेट्स से 100, ठीक है? That also suppose. Okay, Yes, sir. fine. And this question is given at the end of your chapter notes in case somebody wants to, just the question, not the answer. Okay, fine. Okay, all right. Guys, let's pause here for today, and in the next lecture we will discuss this particular case study, which is the food stamp situation. This also helps us in understanding a situation of budget line जहाँ पे अलग अलग levels पे अलग अलग pricing होती है, वो हम लोग उसके बारे में बात करेंगे। जैसे
यहाँ पे डिफरेंट अमाउंट्स के बाद डिफरेंट प्राइसिंग एप्लीकेबल हो गई थी, उसी तरीके का एक एग्जाम्पल है, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे एंड सम मोर एग्जाम्पल्स एंड मोर और लेस आफ्टर दैट योर चैप्टर विल बी डन. ठीक है, सो आई विल सी यू गाइज ऑन वेडनेसडे. ओके, Yes, Thank you. ma'am. all right. Thank you, ma'am. Thank you Thank you, guys. ma'am. Take care. Bye bye.